Our discussion has now come to pivot tables. Now, this is one of the most important features of Microsoft Excel, as I've already discussed earlier as well. And why is it so? Why is it one of the most powerful features? Because no matter how big or how large your data set is, it allows you to summarize your data without the use of any formula, and that too within seconds, within fraction of second. All you need is the skill to drag and drop. That's it. Okay, so now it has three conditions before we get into the data. Before we get into working on pivot tables, you should know that your data set should comply with these three conditions. Number one, that it should have a header on the columns. Okay, number one. Number two, there should not be any empty columns or rows in between your data set. That is, it should be in the continuity. And thirdly, that there should be no total or subtotal rows in between. Okay, so if your data set meets these three requirements, then you can apply pivot table on that data set. So there is nothing much to say about pivot tables in the theory. Let us directly dive on to the exercise workbook. So this, what you see here, is a template of pivot table, and this is some sample report that I have already created from this data set here. This is our data which we want to analyze, which we want to summarize. We need to create a pivot table on this. Okay, so how can we create a pivot table? For that, you need to go to the insert tab. Let us use the keyboard combination Alt N and then V for pivot table. Okay, so press V. Now it asks create pivot table. So it has already selected a range already. Yes, this has already covered the entire range that we have. So we do not have to do anything manually here. Next is using an external data source. You can do that as well. For now, we have this data here. Choose where you want the pivot table report to be placed. Now let us keep it on a new worksheet. You can keep it here as well by, if you click on the existing worksheet, then you can click on any cell and create a pivot table here as well. But we will be using it on a new worksheet. And now let us click on OK. So as you see that it only takes seconds to create a pivot table out of a large data set. But now we only have this template here. We do not have any summarized data as of now. So let us see what we have on the right hand side first. On the right hand side, we have this something called pivot table fields, and it has listed down the categories, the column headers that we had on the source data set. तो हमारे source data में you will see that there were 4 column headings, right? तो 4 headings था. तो हमारे यहाँ pivot table field में भी we have this 4 fields here. We have this 4 fields here. Okay. And below this field we have 4 boxes. The filter box, columns, rows and values. And also we have a settings icon here. So if you click on this tools, we have this option to change the layout of this pivot table field. अभी जैसे यहाँ पर this is the layout currently, जो current layout है, इसमें आपको प्रॉब्लम कब हो सकती है? जब आपका जो नंबर ऑफ हेडर्स है आपके टेबल पर, आपके डेटा सेट के टॉप पर, इफ़ दैट इज़ वेरी लॉन्ग, तो आपकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर कंप्लीटली शो नहीं हो पाएगी. आपको यहाँ पर काफ़ी स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा टू एक्सेस योर हेडिंग्स हियर. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेंज द लेआउट टू द सेकेंड ऑप्शन हियर. तो उस केस में आपकी जो लिस्ट है वो चाहे अगर लंबी भी हो, तो यू विल बी एबल टू access the list more conveniently. Yes, but in our case, since we do not have much data here, so let us stick to the previous version only. So this is the default layout. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं?
दिस इज एक्चुअली द कंट्रोल पैनल, आई कैन से। आपके यहाँ आपकी जो टेबल है वो यहाँ पर समराइज होने वाली है, बट दिस इज़ द कंट्रोल पैनल। आप उस पूरे डेटा सेट को, उस पूरे समरी को, उस पाइवट टेबल को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस चेक आउट ऑल ऑफ दिस वन बाय वन। सबसे पहले है कैटेगरी, द फर्स्ट कॉलम दैट वी हैड। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई क्लिक ऑन इट। व्हेन आई चेक मार्क दिस वन, so you see that something happens on the field area where this pivot table is being created, but keep your eyes for now on the pivot table fields only. अब वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। पहले इस कंट्रोल पैनल को समझ लेते हैं, बिकॉज एक बार कंट्रोल समझ में आ जाएंगे तो टेबल बनाना और टेबल को बनाना और डिसमेंटल करना दोनों ही एकदम ईजी हो जाएगा। सो जैसे ही मैंने यहाँ कैटेगरी पर क्लिक किया, इट शिफ्टेड दिस कैटेगरी टू अंडर दिस रोज बॉक्स। यहाँ पे 4 बॉक्सेस है, इट हैज सेंट इट टू द रोज कैटेगरी। इसीलिए यहाँ पाइवट टेबल पर यू विल सी दैट दिस कैटेगरी आइटम्स हैव बीन प्लेस्ड इन द रो लेबल्स एंड दिस हैज बीन गिवन रो वाइज, ओके। उसके बाद लेट से सेल्स पर क्लिक करते हैं। आई कम टू द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में ज़्यादा आइटम्स है तो उसको थोड़ा सा बाद में लेता हूँ। सेल्स में इफ़ आई क्लिक हियर, then it automatically goes into the values, because in the data set that we have उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है जिसमें कुछ फिगर्स है, जिसमें कुछ वैल्यूज़ है, जिसके साथ आप कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अभी पाइवट टेबल फीचर इतना स्मार्ट है कि इट आइडेंटिफाइज कि जिस कॉलम में वैल्यू है उसको ऑटोमेटिकली इसने वैल्यूज़ में प्लेस कर दिया, ओके। उसके बाद है क्वार्टर, दैट इज़ क्वार्टर 1, 2, 3, 4। हमारे डेटा सेट में 4 क्वार्टर थे। इफ़ यू हैवंट सीन ऑलरेडी, यू कैन चेक आउट हियर, ठीक है। चलिए अब क्वार्टर पर क्लिक करते हैं एंड व्हाट हैपन्स, ये भी ऑटोमेटिकली रोज में चला गया, रोज बॉक्स में, एंड दिस इज ऑल्सो अपेयरिंग ऑन दी रो साइड हियर। आप इस बॉक्स को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए द ईजिएस्ट वे इज यूज योर माउस, लेफ्ट क्लिक ऑन इट and drag it where you want to keep it. तो let's say we want to keep it in the columns. तो अगर हम इसको columns में रखेंगे, what is going to happen? Our quarter will come appear in the column headings. ठीक है? Another way can be if you click on this arrow here, यहाँ से भी आप boxes को change कर सकते हैं. So the first one shows that move to report filter. Now this filter is empty now. बट अगर आप उसको यहाँ भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रो में तो ये ऑलरेडी है, इसीलिए ये ग्रे आउट हो चुका है, दिस इज़ नॉट क्लिकेबल। मूव टू कॉलम लेबल्स, आप यहाँ से इसको कॉलम में भेजना चाहें, यू कैन क्लिक हियर एंड मूव टू वैल्यूज़ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। बट सिंस कैटेगरी में वी हैव टेक्स्ट ओनली, तो आप इसको रो या कॉलम में ही रखें तो बेटर है। वैल्यूज़ में भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म। तो अगर मैं यहाँ मूव टू कॉलम्स पर भी क्लिक करूँ, सो दिस इज़ गोइंग टू वर्क दिस वे। बट अभी जो मेरा डेटा का स्ट्रक्चर है, टेबल का स्ट्रक्चर है, डैट हैज़ बिकम वेरी अनयूजेबल बिकॉज अब ये डेटा बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल हो चुका है। सो लेट अस ब्रिंग इट बैक टू रोज ओनली, ओके। एंड नाउ लेट अस ब्रिंग द प्रोडक्ट एज वेल। आप इस प्रोडक्ट को यहाँ से चेक मार्क नहीं करके आप डायरेक्ट भी यहाँ से लेफ्ट क्लिक से आप इसको पिकअप कीजिए एंड यू कैन ड्रैग इट वेर एवर यू वॉन्ट। सो लेट अस कीप इट हियर। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ ड्रैग किया, यू सी दैट अंडर द कैटेगरीज, और कैटेगरी वाज बेवरेजेस, कॉन्डिमेंट्स, कन्फेक्शंस, दिस वे, एंड उसके अंदर वी हैव नाउ ऑल द प्रोडक्ट्स। तो अब बेवरेजेस के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज चाय, चंग और कॉफ़ी एंड दिस, सो दैट हैज़ कम विद इन दिस कैटेगरी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट को ऊपर भी भेज सकते हैं एंड कैटेगरी को नीचे भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऊपर है, कैटेगरी नीचे है, प्रोडक्ट ऊपर है, कैटेगरी नीचे, बट इससे मेरा डेटा का स्ट्रक्चर अभी भी वापस से ख़राब हो गया। यस, दिस इज़ नॉट मेकिंग मच सेंस। तो इसीलिए कैटेगरी ऊपर ही रखते हैं। बट अब ए बॉक्स अब भी बच गया, तो उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। हाउ कैन आई, व्हाट डू यू पुट इन फिल्टर्स? सो लेट मी ड्रैग दिस कैटेगरी टू फिल्टर्स नाउ। इफ आई ब्रिंग इट टू फिल्टर, यू विल सी दैट यहाँ रोज में जो कैटेगरी मेंशन था दैट हैज़ नाउ शिफ्टेड, दैट हैज़ नाउ बीन रिमूव्ड,
एंड अब ऊपर एक हेडिंग आ गया है, दैट इज कैटेगरी, एंड उस कैटेगरी में इफ यू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट हियर, you will see all the categories. So now if I click on this beverages and I click on OK, this entire table shows me only those products which are under the beverages category. Similarly, आप यहाँ से confections पर click करेंगे and if you click on OK, it will show you only the confectionery items. आप यहाँ से multiple items click करना चाहें, you can select multiple items from here, go to beverages and let's say confections and now click on OK. So now this shows multiple items, that is the beverages and the confectionery together. Okay, now so this is the use of filter. अब इस filter को clear कर देते हैं. Let us check it all and click OK. अच्छा, तो we got some idea about how pivot table fields work. Now let us come to this table here. अब यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ है दे लुक लाइक दैट दे हैव बीन मैन्युअली इंसर्टेड, राइट, दीज आर हार्ड कोडेड फिगर्स, बट आप अगर इनको चेंज करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते. अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, इफ़ आई वांट टू एडिट इट, जैसे मैंने F2 प्रेस किया, इट सेज वी कांट चेंज दिस पार्ट ऑफ द पाइवट टेबल. आप इसको डिलीट करने की कोशिश कीजिए, आप वो भी नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब पाइवट टेबल में आप डेटा को एंटर नहीं कर सकते. आपका जो सोर्स है वहीं से यहाँ पर डेटा फैच होगा. आपको कुछ भी चेंजेस करने तो आपके सोर्स में आपको चेंज करना पड़ेगा. दिस इज ओनली अ समराइज्ड रिपोर्ट, एंड रिपोर्ट में वही आएगा जो आपके इनपुट्स पर है, जो आपके डेटा सेट पर है. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू अवर पाइवट टेबल फील्ड्स. यहाँ पे हमने पाइवट टेबल फील्ड्स को ऐड करना देखा. अब ये भी देखते हैं कि इसको रिमूव कैसे करना है. So for removing any of these items, let's say I want to remove this category from here. या तो आप यहाँ से वापस अनचेक कर सकते हैं and that way you can remove it. That is one way. So let me drag it up here and now let me remove the product. So अगर product, अब मुझे product को remove करना है तो next way is कि आप यहाँ से इस arrow पर click करें and यहाँ से इसको remove field कर दें. दैट इज़ अनदर वे. एंड अगर आपको इतनी इज्जत नहीं देनी है तो बस इसको लेफ्ट माउस क्लिक से उठाइए, यूँ घुमाइए और यूँ फेंक दीजिए. ठीक है. तो आप इसे चाहे यहाँ फील्ड पर फेंकें या फिर आप यहाँ से इसे उठाकर यहाँ इस एरिया पर छोड़ दें तो भी दिस इज गोइंग टू रिमूव द फील्ड. ओके, ऑल राइट. नाउ कमिंग बैक टू आवर टेबल, वी हैव द कैटेगरीज नाउ एंड वी हैव द क्वार्टरली सेल्स. Now let me remove the quarterly data as well. Now we have only beverages and the sales. And if I want to know what is the detail, what is the breakup behind this particular value, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे. When you make a double click on any value in the pivot table, it will show you the breakup, the details of that particular value. तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ and it shows, it creates a new worksheet and it shows me कि beverages category में कौन से प्रोडक्ट सेल हुए, फॉर व्हाट वैल्यू एंड इन विच क्वार्टर. यस, सो दैट इज आई हैव ऑल द डिटेल्स नाउ. सो दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर द मिडिल मैनेजमेंट और द एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट. यस, बिकॉज उनको क्या चाहिए होता है, उनको दे डू नॉट नीड दिस काइंड ऑफ डेटा, दे नीड this kind of summarized data so that they can take their decisions very quickly. And in case they need more details, they can simply make a double click and get the details. Now another thing, how is it beneficial from how is a pivot table more beneficial over a normal table? हमने normal table पर देखा था, you can do the sorting and filtering and structured references, then there was auto expansion. But क्या एक normal table एक pivot table की तरह dynamic है? आप pivot table का जो structure है उसको आप एक क्लिक से, एक जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से आप इसका टेबल का स्ट्रक्चर आप चेंज कर पा रहे हैं. बट इन अ नॉर्मल टेबल दैट इज़ नॉट पॉसिबल. नंबर वन. नंबर टू, टेबल में यू यूज़ वेरियस फार्मूलाज. आपको वहाँ पे फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है कोई भी कैलकुलेशन के लिए. यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यू जस्ट स्पेसिफाई कि आपको क्या करना है. चलिए अब इस डेटा को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट एक पाइवट टेबल ने क्या किया, जो भी सेल्स डेटा अवेलेबल था उनका यहाँ पर सम को यहाँ पर शो किया. यस,
इफ़ यू वांट टू चेंज दैट, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? यू कैन क्लिक ऑन दिस एरो हियर एंड गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग्स. ठीक है, एंड हेयर यू विल सी द वैल्यू फील्ड सेटिंग्स ऑप्शंस. यहाँ से आप सम कर सकते हैं, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, मतलब जो भी हमने सब टोटल में जो भी फीचर्स देखे थे वो सभी यहाँ पर है. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ सम, लेट अस से डू द काउंट. तो अगर मैं काउंट इसे करूँ एंड इफ आई क्लिक ऑन ओके, देन व्हाट इट डज, इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट हैज़ बीन मेड. इसका और ब्रेकअप समझने के लिए लेट्स से क्वार्टर को भी ऐड कर देते हैं. अब नाउ व्हाट इट शोज कि बेवरेजेस कैटेगरी में 11 सेल्स हैज़ बीन मेड इन क्वार्टर 1 and a total of 46 sales has been made within the entire year. अगर आप इसको और प्रोडक्ट के साथ ब्रेकअप देखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट को यहाँ ड्रैग कीजिए. नाउ व्हाट डू वी हैव? वी हैव प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप कि कौन सा प्रोडक्ट किस क्वार्टर में कितना बार सेल हुआ है. यस, सो दिस इज द काउंट. सिमिलरली आप काउंट की जगह एवरेज कर सकते हैं एंड मैक्सिमाइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन. Now let me remove this and change that back to sum. Now let's say I want to carry out more analysis. I want to show what is the percentage of sales that has been made in this quarter for each category wise. उसके लिए what you will have to do, यहाँ पर वापस क्लिक करेंगे, go to value field settings and now come to this show values as. When you go to show values as, click on this bar here, you will get a lot of options here. So पहले let's say अभी हमारा टारगेट है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल शो करना एंड दैट टू कैटेगरी वाइज. सो नाउ यू कैन क्लिक ऑन ओके. सो वी हैव दिस कैटेगरी वाइज परसेंटेज हियर कि बेवरेजेस का सेल 16.74% हुआ, कन्फेक्शंस 13.26% एंड सो ऑन. बट दिस इज़ नॉट मेकिंग मच सेंस. अगर हम वैल्यूज़ शो करें एंड वैल्यूज़ के साथ में परसेंटेज शो करें तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस ब्रिंग द सेल्स वंस मोर. आप इस सेल्स को वापस यहाँ ले आइए एंड नाउ व्हाट डू यू सी, बेवरेजेस के सामने वी हैव द अमाउंट, देन वी हैव द सेल्स परसेंटेज. बट यहाँ जो हेडिंग्स है दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. तो चलिए हेडिंग्स को एडिट कर लेते हैं. नाउ सम ऑफ सेल्स टू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट टोटल सेल्स. इसको कर दीजिए ओके. दिस इज टोटल सेल्स एंड सम ऑफ सेल्स की जगह पे यू कैन कीप इट एज परसेंटेज ऑफ परसेंटेज सेल्स. क्लिक ऑन ओके. सो नाउ दिस इज मेकिंग मोर सेंस. Yes, let me remove the grid lines from the worksheet. Now let's say instead of percentage sales I want cumulative sales data. ये जो भी सेल्स है इसका मुझे क्यूमुलेटिव डेटा चाहिए. तो उसके लिए आप वहाँ से भी जा सकते हैं, यू कैन गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग्स फ्रॉम देयर एज वेल. बट उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव आप यहाँ पे राइट क्लिक भी कर सकते हैं. व्हेन यू मेक अ राइट क्लिक यू कैन गो टू हियर एज शो वैल्यूज एज एंड यहाँ से क्यूमुलेटिव डेटा के लिए यू विल हैव टू गो टू रनिंग टोटल. ठीक है, तो यहाँ से रनिंग टोटल पर क्लिक करेंगे एंड हाउ डू यू वांट द रनिंग टोटल, कैटेगरी वाइज या क्वार्टर वाइज? क्वार्टर वाइज विल मेक मोर सेंस कि पिछले क्वार्टर का जो था दैट इज क्यूमुलेटेड इन द नेक्स्ट क्वार्टर एंड देन नेक्स्ट क्वार्टर. सो आई थिंक दिस विल मेक मोर सेंस. नाउ क्लिक ऑन ओके. And so now what do we have? फर्स्ट क्वार्टर में 35858, नेक्स्ट क्वार्टर में 25466. तो दिस इज़ द क्यूमुलेटिव टोटल. अच्छा, इसका हेडिंग का नाम हमने चेंज नहीं किया, इसको अब आप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ परसेंटेज सेल्स यू कैन कीप इट क्यूमुलेटिव सेल्स. ठीक है, तो अब यहाँ अब थर्ड क्वार्टर में सेल्स हुआ 2085. सो दिस इज़ द क्यूमुलेटिव सेल्स फॉर ऑल दीज 3 क्वार्टर्स एंड सिमिलरली द लास्ट वन. And all this add up to 102074. Now if this data is looking more clumsy, then we can change the structure as well. Let me drag this to columns again. And now I guess this data is making more sense. And अब यहाँ cumulative sales की जगह आप
कुछ और वैल्यूज पुट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं. लेट अस से वी वांट टू इंसर्ट द डिफरेंस, अ क्वार्टरली कंपैरिजन कि पिछले क्वार्टर में जितना था एंड इस क्वार्टर में कितना है, उसमें परसेंटेज चेंज क्या है. सो दैट कैन बी डन यूजिंग परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम. तो इस पर क्लिक करेंगे एंड दैट वी वांट क्वार्टर वाइज, राइट. यहाँ बेस आइटम पर यू क्लिक ऑन प्रीवियस, सो दैट परसेंटेज आइटम विल बी कैलकुलेटेड विद द प्रीवियस वैल्यू. एंड नाउ क्लिक ऑन ओके. तो अभी शो कर रहा है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स ईच क्वार्टर. नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द रिबन टैब हियर. यू सी यहाँ पाइवट टेबल्स के अंदर वी हैव टू ऑप्शंस. इफ वी गो टू डिजाइन, तो यहाँ से आप एक तो पाइवट टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. लेट अस कीप इट दिस वन. एंड डेटा का स्ट्रक्चर फिर से चेंज कर लेते हैं. अब यहाँ पे और क्या ऑप्शन है. द फर्स्ट वन इज सब टोटल्स. यहाँ पे अभी देखिए बाय डिफॉल्ट सब टोटल्स जो है दैट इज कमिंग ऑन द टॉप. आप इसको बॉटम पर भेज सकते हैं फ्रॉम हियर. द फर्स्ट वन इज डू नॉट शो सब टोटल्स एट ऑल. सो इफ यू क्लिक हियर you will not see the subtotals, and if you want to show then you can keep it at the bottom as well. तो यहाँ bottom पर click करेंगे and you will get the totals at the bottom of each category. Next is for the grand totals. अभी by default grand totals we have row wise and column wise as well. नीचे हर column के end पर भी totals है and हर row के end पर भी totals है. तो अगर let's say हम ये row wise totals को remove करना चाहें तो you can click on for columns only and these totals will get removed. Next is report layout. If you want to keep it compact, ये compact version है because एक heading के नीचे फिर दूसरे items आ रहे हैं. And इसने और क्या किया, totals को वापस से from the bottom it has shifted it to top. If you click this show in outline form, then what it does, category and product को इसने अलग अलग column पे show किया है. What more, you can show in tabular form. So this is nothing but the way of presentation of your table in various layouts. उसके बाद whether you want to insert blank line after each item, so you can insert that if you want, or you can remove it as well. उसके बाद रो हेडर्स कॉलम हेडर्स तो ऑलरेडी हैं. इफ़ यू वांट टू रिमूव इट आप यहाँ से हटा सकते हैं, बट लेट अस स्किप इट दैट वे. बैंडेड रोज एंड कॉलम्स इज इफ यू वांट स्ट्राइप्स ऑन योर टेबल. सो दैट वाज डिजाइन टैब विद इन दी पाइवट टेबल टूल्स. अब एनालाइज में भी देख लेते हैं व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव. फर्स्ट थिंग इज दिस पाइवट टेबल नेम. तो जब भी आप पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं, जैसा हमने टेबल में भी देखा था, रेंज ऑफ सेल विच हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू टेबल गेट्स अ यूनिक नेम. तो सेम वे इसका भी एक यूनिक नेम है. यू कैन चेंज इट इफ यू वांट. देन अंडर द ऑप्शंस, द वन इम्पॉर्टेंट ऑप्शन दैट आई फील इज दिस फॉर एम्प्टी सेल्स. अभी फॉर एम्प्टी सेल्स देयर इज अ ब्लैंक. अगर आप चाहें कि ये जो एम्प्टी सेल्स यहाँ पर हैं वहाँ पर या तो जीरो शो हो या डैश शो हो, तो यू कैन use that. तो let us keep it 0 now. 0 करके OK कर दीजिए and all the blank cells have been filled with 0. Then this field settings is again the same thing जो हमने यहाँ एरो के अंदर देखा था, value field settings. So this is the same thing. तो ये value field settings को ओपन करने का 3 तरीका हो गया. एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं, सेकेंड आप यहाँ से कर सकते हैं, एंड तीसरा राइट क्लिक से हमने देखा था. अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो भी यहाँ से आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है. ओके. देन इंसर्ट स्लाइसर. अब स्लाइसर इंसर्ट करने से पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं. सो लेट मी रिमूव दिस प्रोडक्ट अगेन एंड लेट्स से आई डू नॉट वांट द क्वार्टर एज वेल एंड दिस ऑल्सो. अब ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा है. एंड नाउ आई वांट टू इंसर्ट अ स्लाइसर. तो इस स्लाइस पर क्लिक कीजिए. सो बेसिकली व्हाट इज अ स्लाइसर? दिस इज अ नथिंग बट अ फिल्टर टूल.
हमने ऑलरेडी हमने टेबल डिस्कस करते वक्त भी देखा था. अगेन लेट अस चेक इट आउट. सो इफ आई वांट filter on the basis of quarter and let's say category. So if you click on OK, we have these two slicers here. एंड अब बस आपको इस पर क्लिक करना है एंड वो फिल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई होते रहेगा. अगर आपको मल्टीपल चीज़ें चाहिए तो यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ों पर भी क्लिक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस वन. एंड इसको भी फर्दर आपको क्वार्टरली सेल्स चाहिए, आपको क्वार्टर 1 का सेल्स देखना है तो क्वार्टर 1 का सेल्स मिल जाएगा, क्वार्टर 3 का मिल जाएगा एंड सो ऑन. आपको मल्टीपल को क्वार्टर्स का चाहिए तो क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 3 आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी दैट स्लाइसर ऑफर्स कि आपको फिल्टर्स जा जाकर ड्रैग एंड वो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट मेक अ लेफ्ट क्लिक एंड आपके लिए जो फिल्टर है वो अप्लाई होते रहेगा. अब स्लाइसर में एक और चीज़ है. लेट्स आई क्रिएट अनदर पाइवट टेबल ऑन द सेम डेटा. तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो आपका एग्जिस्टिंग पाइवट टेबल है आप उसको सिलेक्ट कीजिए एंड you can copy and paste it to a new location. So let me paste it here. And अब इसके लिए let us say I do not want the, I want only the quarter and not the category. So अब अगर मैं slicer अप्लाई कर रहा हूँ, you can see that ये जो स्लाइसर है ये दोनों पर काम कर रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ स्लाइसर टूल पर ऑप्शंस पर आकर देखेंगे एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस रिपोर्ट कनेक्शंस. तो यहाँ देखिए ये दोनों टेबल्स ऑटोमेटिकली चेक मार्क है. तो अगर आपका ये स्लाइसर अगर किसी एक टेबल पर काम कर रहा है दूसरे पर नहीं काम कर रहा है तो आप यहाँ से इसको चेक मार्क कर सकते हैं. एंड अगर आपको यहाँ से स्लाइसर हटाना है आप इसको अनचेक कर दीजिए एंड क्लिक ऑन ओके. तो अब जो ये क्वार्टर वाला स्लाइसर है ये इस पर अप्लाई नहीं होगा बिकॉज मैंने इसको अनचेक कर दिया. इफ़ यू वांट इट अगेन, options, report connections, check it back again, click on OK. Okay, so now let me delete this one again. और क्या कर सकते हैं, inserting a timeline as well. well हमारे डेटा में यहाँ पर कोई भी dates नहीं है. अगर there is some date field जिसमें years, months या dates हो, only then you will be able to insert timeline. तो अभी हमारे केस में नहीं है तो इट विल शो एन एरर. इफ आई क्लिक ऑन दिस हियर इट विल शो दैट देयर इज नो फील्ड विच इज फॉर्मेटेड एज डेट. सो बट देन अगेन ये भी कुछ डिफरेंट नहीं है, स्लाइसर की तरह ही है. आपको यू विल गेट अ टाइमलाइन जहाँ पर आपको जस्ट आप ईयर्स एंड मंथ्स एंड क्वार्टर्स के बीच में आप सिलेक्ट करते रहेंगे एंड आपका डेटा जो है ऑटोमेटिकली फिल्टर होते रहेगा. ओके, नेक्स्ट इज दिस चेंजिंग डेटा सोर्स एंड रिफ्रेश. अच्छा, the one important thing is that since you cannot change the data in your pivot table, आप किसी भी फिगर को चेंज तो कर नहीं सकते. तो अगर कोई चेंज करना है तो आपको सोर्स डेटा में चेंज करना पड़ेगा. तो what you will have to do, let us say that I change this figure. ये 705.6 को मैं 1000 से इंक्रीज कर देता हूँ एंड 1705 कर देता हूँ. ओके, नाउ क्लिक एंटर, नाउ प्रेस एंटर. एंड अब इसका इम्पैक्ट हमारे इस पर पड़ा क्या, अभी तक नहीं पड़ा. नाउ लेट मी क्लियर दिस ऑल दी फिल्टर्स फर्स्ट, तब आपको इम्पैक्ट पता चलेगा. तो मैंने सभी फिल्टर्स को हटा दिया है. ठीक है, तो दिस वाज आवर टोटल सेल्स इनिशियली, बट दिस हैज़ नॉट चेंज. तो अभी इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू रिफ्रेश. तो अगर मैं इस पर रिफ्रेश पर क्लिक करूँगा, अब यहाँ देखना टोटल में चेंज आएगा $1000 का. इफ आई क्लिक ऑन रिफ्रेश, दिस हैज इंक्रीज बाय $1000. नाउ वन मोर थिंग, इफ आई लेट्स से इंक्रीज द साइज ऑफ दिस टेबल, दिस डेटा रेंज, अगर मैं यहाँ नीचे और एक फील्ड ऐड कर दूँ, सो क्या ये चेंज आपको पाइवट टेबल पर मिलेगा? नो. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज पर जाकर यहाँ चेंज डेटा सोर्स पर क्लिक करना पड़ेगा. एंड नाउ यू विल हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर डेटा सेट एंड
व्हाट यू विल हैव टू डू, आप इसका जस्ट रो नंबर को एक इंक्रीज कर दीजिए, 288 कर दीजिए, एंड तब ये डेटा सेट आपका इसमें कंसीडर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 610 से इट हैज़ इंक्रीज टू 612। ओके, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सिचुएशन कि आपको जो डेटा सेट है उसको मैन्युअली इंक्रीज करना पड़े, मैन्युअली चेंज करना पड़े डेटा सोर्स को, what you can do, you can convert your data set or your original source data into a table, because हमने टेबल डिस्कस करते वक्त ये देखा था कि अगर टेबल के नीचे कोई भी रो ऐड होता है तो वो ऑटोमेटिकली उस टेबल में कवर हो जाता है। यस, वी हैव सीन दैट ऑटो एक्सपांशन। तो अगर कोई भी डेटा फर्दर इस डेटा सेट के नीचे ऐड होगा, कोई भी रो ऐड होगा, तो वो टेबल उसको ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा, एंड वंस दैट थिंग हैज़ बीन कैप्चर्ड इन द टेबल, तो आपका जो पाइवट टेबल है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, सो बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपका जो भी डेटा का आपका जो सोर्स है उसको आपको पहले टेबल में कन्वर्ट कर देना चाहिए, Ctrl+T से इसको टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए, एंड उसके बाद आप यहाँ से इसको समराइज विथ पाइवट टेबल कीजिए। दैट वुड बी मोर डायनेमिक। इन फ्यूचर यहाँ पे कोई भी कॉलम ऐड होगा, कोई भी रो ऐड होगा, उसका इम्पैक्ट आपके पाइवट टेबल पर डायरेक्ट आ जाएगा, आपको डेटा सोर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक जो काम की चीज़ है यहाँ पर, दैट इज़ दिस रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स। आपको आपके डेटा सेट के साथ क्या करना है, अगर आप थोड़ा सोच रहे हैं, आपको सोचना पड़ रहा है, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स। इट विल गिव यू आइडियाज़ कि आप अपने डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सो इफ़ आई क्लिक ऑन हियर, you will see that it is giving me some ideas कि I can make a category and sum of sales, or I can make a quarter, I can keep the quarters on the row side and make a total here। तो ये तो हमने ऑलरेडी कर भी रखा है, एंड यहाँ पर क्या है, आप काउंट कर सकते हैं हाउ मेनी प्रोडक्ट्स हैव बीन सोल्ड ईच क्वार्टर वाइज, और यू कैन मेक अ काउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय कैटेगरी एज वेल, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स हैव बीन सोल्ड विद इन इच कैटेगरी। तो if you click on OK, your pivot table will convert into this। okay, अच्छा, उसके बाद ये तीन ऑप्शन देख लीजिए। बिफोर गेटिंग इनटू पाइवट चार्ट, लेट मी शो यू दिस। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द फील्ड हेडर्स। अगर आपको फील्ड हेडर्स शो करना, हाइड करना, आप ये यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन बटन्स, अभी हमारे केस में बटन्स नहीं है, बिकॉज जब हम और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, लेट्स से नाउ, अच्छा, सो दिस एरर इज कमिंग बिकॉज अब ये डेटा और वर्टिकली एक्सपांड होना चाह रहा है, बट यहाँ नीचे और एक पाइवट टेबल है, तो दैट इज़ नॉट एबल टू एक्सपांड। तो आप इसको ओके कीजिए एंड इस टेबल को यहाँ से हटा दीजिए। तो अगर आप इसको यहाँ से हटा देंगे तो अब ये डेटा यहाँ से चेंज हो पाएगा। यस, तो अब यहाँ पे आपको बटन्स दिखाई देंगे, दिस एक्सपांशन एंड दिस प्लस एंड माइनस बटन, जिससे आप डेटा को एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर आपको ये बटन शो करना है तो यू कैन शो, हाइड करना है तो यू कैन डू दैट। एंड दिस फील्ड लिस्ट, अगर बाय चांस आपसे गलती से ये पाइवट टेबल फील्ड्स अगर यहाँ से डिलीट हो जाए, यहाँ से रिमूव हो जाए, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस फील्ड लिस्ट अगेन एंड यू विल गेट इट बैक। ओके, एंड नाउ लास्टली कमिंग ऑन टू पाइवट चार्ट्स। अब डेटा को प्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स इज अगेन वेरी इजी, हैज़ बिकम वेरी इजी। आपको जस्ट डेटा सेट को सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन पाइवट चार्ट्स, एंड इट विल गाइड यू कि आपको किस तरह का चार्ट क्रिएट करना है। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो लेट अस गो विथ अ सिंपल कॉलम चार्ट नाउ। दिस इज हाउ योर डेटा इज गोइंग टू लुक लाइक। क्लिक ऑन ओके एंड यू हैव योर चार्ट हियर। ओके, आप इसको फर्दर और चेंज करना चाहें, यू कैन डू दैट। यू कैन, लेट्स से यू वांट ओनली बेवरेजेस एंड डायरी प्रोडक्ट्स, क्लिक ऑन ओके। सो ये एक तरह से डायनेमिक चार्ट है, आपको बस यहाँ से फिल्टर स्पेसिफाई करना है एंड आपका जो चार्ट है ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगा। सो दैट्स ऑल व्हाट पाइवट टेबल कैन डू। अब आप इस सोर्स डेटा पर जाकर यू अप्लाई द पाइवट टेबल एंड ट्राई टू कैरी आउट सम एनालिसिस ऑफ योर ओन। व्हाट इंटरप्रिटेशन कैन यू मेक आउट ऑफ दिस टेबल, एंड यूज़ डिफरेंट वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। आप डिफरेंट वैल्यू फील्ड सेटिंग्स को यहाँ से यूज़ कीजिए, एंड यू विल सी दैट शो वैल्यूज एज में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यू कैन गेट परसेंटेज, वी हैव सीन द परसेंटेजेस, वी हैव सीन परसेंटेज डिफरेंस, देन क्यूमुलेटिव टोटल्स। आप यहाँ से रैंकिंग भी कर सकते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड कैन बी यूज इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा।
that will help you in more analysis. Use the chart as well. You can use recommended pivot tables as well. स्लाइसर को यूज़ कीजिए, उससे फिल्टर अप्लाई कीजिए स्लाइसर के थ्रू. So that's all about the pivot table.